India suspended the Indus Water Treaty following the terrorist attack in Pahalgam. Thus, signaled a permanent shift in India's policy towards Pakistan. Pakistan already undermined the fundamental spirits of the Indus Water Treaty, goodwill and friendship by fostering tariffs and brackets. Absolutely. देखिए, we must understand the backdrop. The simple fact is, in 1956, Pandit Nehru, signed this treaty with Pakistan. It was an absolutely unequal treaty. But he signed it in the hope that he would gain Pakistan's friendship and goodwill. It would end the Kashmir dispute and Pakistan would be reassured that India meant well. But what we have seen, we signed that treaty, which gave three of the northern rivers to Pakistan, right? And only three eastern rivers to India, which give about 20% of the basin waters. 80% of the basin's waters was allocated to Pakistan. Is that an equal treaty? The rivers that flow through J&K were just granted to Pakistan. Because the Americans and the World Bank thought that Kashmir will become Pakistan territory, so pehle to give them the bloody waters of J&K. The people of J&K don't deserve that. They can't use it. The rights are with Pakistan. Over 80% of the basin's water. India is a country 5 times the size of Pakistan. Our population is 1.5 billion today. And the water needs of 1.5 billion Indians are totally overtaken by the far smaller population of Pakistan. They have priority rights. Says who? Under what law? Pakistan is a lower riparian state. At best, it can have equal rights. But it cannot have priority rights over 80% of the basin water. India gets 20%. Why did India sign this stupid treaty? Because we thought there would be peace with Pakistan. Was there peace with Pakistan? No, sir. Pakistan attacked India in 1965, 1971, Kargil, and then for 40 years it has waged asymmetric warfare, created mass casualty terror strikes in India. And when the last of these happened in 22nd April last year, India said enough is enough. Blood and water cannot flow together. The whole treaty was negotiated for peace and goodwill and friendship. You have destroyed that by persistent terror attacks on India. You expect us to continue with this treaty, this most unequal treaty? At the very least, it has to be bloody well renegotiated. And we will not accept the World Bank or America as now an interlocutor. You will have to talk direct to us. And all this nonsense about we are going to attack India, you try. You try. You will cease to exist. Okay? Don't threaten. Get down to Mother Earth and renegotiate this most unequal treaty. How can you have 80% claim over the waters? 80% claim of the waters of 80%? 20% to India, which is 5 times your size, 10 times your population. Right? So it has to be on the basis of the population. South Asia is one of the most water-stressed regions in the world. Most water-stressed regions in the world. Per capita availability of water is the lowest. In such a situation, 1.5 billion Indians can't give priority rights of water to Pakistan. This treaty bloody well has to be renegotiated. And Pakistan might as well do that. Secondly, the water that is given to Pakistan in their Tulbul project, in their other, there is huge need for desilting. They've choked the reservoir, they're down to 30% of their flow. Right? So, almost only 40% of the water allocated to Pakistan is used by the farmlands in Pakistan. The rest flows down to the sea. Or it gets blocked because of the Tulbul project. Why don't you desilt those bloody barrages? Tulbul barrage and the other barrage near Mirpur in J&K. You bloody well do that instead of trying to blame all your problems onto India. You are not desilting your pondage. Is that India's fault?
No, sorry, you do your part. And then the habit is blame India for everything. You create all the problem. ना चैन से जिएंगे, ना जीने देंगे, and yet then go to the world saying India is going. We have to go to war with India. We have to go to war. Okay, try. You'll get yourself destroyed. Sir, it sound or could it face a legal challenge? Furthermore, does the international community grasp India arguments and that to terrorism and normal bilateral cooperation cannot go hand in hand? Normal bilateral cooperation bloody well cannot go hand in hand with terror attacks. Continuing terror attacks, including what you saw last 2-3 days in J&K. How can terror and talks go together? How can blood and water flow together? The Prime Minister is crystal clear. And what locus standi does America or any other country have to intervene in this bloody problem? It is a bilateral problem. It has to be settled bilaterally. They have to renegotiate that treaty, period. America is an upper riparian with Mexico. Look at the way it has treated Mexico. They said no question of sharing, get lost. No international treaty, no nothing. So that is America's attitude, and for India, we must give 80% of our water to the lower riparian. मतलब priority water rights are with the lower riparian. वहाँ पे आप एक बूंद पानी नहीं जाने दे रहे हो to Mexico. I mean, you have restricted the waters of Mexico. So there is one set of rules for America, United States of America, another for India. That won't wash. So, terrorists recently targeted two migrant labour in Kulgam district of Jammu and Kashmir, resulting in the death of both. It is for their reason before shooting them. As soon as the labor identified himself as Hindu, he was shot dead. Similarly, according to the Pahalgam terror attack, victims were killed after being asked for their name and religion. What message do these terrorists intend to convey as per your view? Exactly the message they were trying to convey in Pahalgam. What they were trying to do in Pahalgam was as per a very ulterior design of the ISI sanctioned by Field Marshal Asim Munir. He said, ask the people their religion before shooting them, so that riots start in India against the Kashmiris, against the Muslims. His aim is to instigate riots and anger in India by selective killing based upon religion, so that you create religious riots in India. You create riots against the Kashmiri people who will be singled out for such retaliatory attacks in India. That is their hope. But the Indian people showed tremendous intelligence in seeing through this bloody design. And the Kashmiri people said, this is to try and get us murdered. This is to try and stop the tourism, try and stop our economic gain that we get from tourism. So many livelihoods in J&K are dependent upon tourism. That is what they are trying to stop. That is what they are trying to put a chokehold on by all these attacks asking for religion. And Pakistan must understand, Operation Sindoor was not called off precisely for this reason, that if you restart this tamasha, you will pay a heavy price. We will not just defend. We will not just go defending every little target everywhere all over the valley, which is impossible. You can't protect every single individual, every single Pandit, every single Hindu minority worker. But we can give it back to you across the line of control, across the international border. As you saw in Operation Sindoor, that was just a trailer. If Pakistan has a death wish, it is a country whose economy is on the stage of ruin, collapse. If it decides to fight a war with India, it is finished. As it is, Maulana Fazlur Rahman, Maulana Diesel told Asim Munir, you want to rule Pakistan? Take off your bloody uniform, fight election. You are telling us civilians to raise Lashkar. You are paid to fight. You fight India. And Baluchistan was already gone.
Now Pashtunkhwa is also, rivers of blood are flowing there. POK is in revolt. What the hell are you up to? If Pakistan has a death wish, it will provoke India at this time and it will be doomed. हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित कर दी थी। क्या ये भारत की पाकिस्तान नीति में स्थायी बदलाव का संकेत है? और इसके साथ ही क्या पाकिस्तान ने बच्चों तक आतंकवाद को बढ़ावा देकर सिंधु जल संधि की जो मूल भावना है, सद्भावना है, मित्रता है, तो पहले ही खत्म कर दिया था, जिस तरीके से सवाल खड़े हो? जायज सवाल है। देखिए, इसका परिप्रेक्ष्य समझना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, 1956 में पंडित नेहरू ने ये ट्रीटी करी थी इस उम्मीद में कि हमारा मसलाए जो हैं, पाकिस्तान के मसलाए हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगे, वो दोस्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा, कश्मीर डिस्प्यूट वगैरह सेटल हो जाएगी, क्योंकि हम इतनी उदारता दिखा रहे हैं। उदारता साहब कोई हद की होती है ना। जरा सिंधु वाटर ट्रीटी का बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। 3 उत्तरी जो नदियां थी वो पाकिस्तान को दे दी गई, जो कि 80% बेसिन का वाटर लेके जाती हैं। 80%। 3 नदियां जो सदर्न साइड की थी वो भारत को दी गई, जो कि 20% पानी लेके जाती हैं। आप बेसिक इंबैलेंस समझ रहे हैं? पाकिस्तान 5 गुना छोटा है साइज में, पॉपुलेशन हमसे कोई 10 गुना छोटी है, उसको 80% जाएगा और भारत को 20%। क्यों साहब? मुझे तो समझ नहीं आया कि ये स्टूपिड ट्रीटी साइन क्यों करी गई। वर्ल्ड बैंक को क्यों बीच में वो बना दिया गया, अड़का दिया गया मध्यस्थता करने के लिए, इसी उम्मीद में कि साहब शांति हो जाएगी। सर, स्वा शांति हुई। 56 में आपने ये किया, 65 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, फुल स्केल हमला कश्मीर को छीनने के लिए। ठीक है साहब। और उसके पश्चात 1971 में हमला किया, पाकिस्तान ने पहले किया। उसके पश्चात 1999 में कारगिल का हमला हो गया। फिर 40 साल से चल रहा है साहब ये एसिमेट्रिक वॉर जम्मू कश्मीर छीनने के लिए। और उसके बाद तो टेरर पूरे भारतवर्ष में फैला दिया। कभी 200 मार रहे हैं, कभी 160 मार रहे हैं, कभी ये। क्या भारत के लोग नाली के कीड़े हैं? भारत के लोग गली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं क्या, कि जो चाहे आके मार डाले, जो चाहे आके कत्लो गारत कर दे, यहाँ पे खून खच्चर करे, यहाँ पे नदियां बहा दे खून की, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे अटर नॉनसेंस। सिंधु वाटर ट्रीटी साइन की गई थी इस उम्मीद में कि फ्रेंडशिप होगी, शांति होगी। ना चैन से जिएंगे ये हरामखोर लोग, ना जीने देंगे। और फिर समझते हैं आप कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को चलने देंगे? नॉनसेंस। द इंडस वाटर ट्रीटी हैज टू बी रीनेगोशिएटेड। किसने कहा कि आपके बाप का हक है 80% बेसन वाटर पे, कि 20% भारत के लिए, 80% हमारा? क्यों? क्योंकि कश्मीर का आता है, कश्मीर हमारा है। अमेरिका ने भी बोला कश्मीर तो है ही है इनका, अब आज नहीं तो कल दे ही देगा भारत, तो इसकी तो नदियां इनको दे दो। कश्मीर के लोगों को अपना पानी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को जाएगा। और फिर साहब मैं समझाना चाहता हूं कि आप समझिए कि पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है 40% उसका वो इस्तेमाल कर पा रहा है। क्यों? जो उसके पॉन्डेज है, तुलबुल बैराज और जो दूसरी बैराज मीरपुर के पास है, वहां पे सिल्टिंग हो गई है साहब। 30% पानी रह गया जो जाता है, लोगों को मिल रहा है। 60% पानी समुद्र को बह जाता है, क्योंकि पानी अपनी यूटिलाइजेशन पाकिस्तान ने प्रॉपरली नहीं की है। लेकिन गाली भारत को, सब फसाद की जड़ भारत है। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब भारत उसका जिम्मेदार है। तुम क्या कर रहे हो? आपने क्यों नहीं डीसिल्टिंग की? आपने वहां पे पॉन्डेज जो पानी आपको एलोकेट किया गया उसकी क्यों नहीं बढ़ाई? वाई आर यू लेटिंग इट फ्लो टू द सी? और फिर कह रहे हो कि नहीं जी मैक्सिमम हक हमारा है, 80% पानी हमको चाहिए। क्यों चाहिए? साउथ एशिया इज द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड रीजन इन द वर्ल्ड।
पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दुनिया में लोएस्ट है, भारत और पाकिस्तान लोएस्ट। तो 1.5 अरब भारतीयों के वाटर राइट्स नहीं है, 80% आपको जाना चाहिए। किसने कहा? ये कौन सा मैथमेटिक्स है? ये कौन सी रूल ऑफ लॉ है? 80% हमको चाहिए था, हम सुपीरियर लोग हैं। एक लात पड़ेगी, सुपीरियरिटी ठीक हो जाएगी। और ऊपर से आपकी हरकतें देखो, हमने किया था फॉर पीस एंड गुडविल, 3 बार तो हम पे फौजी हमला कर दिया, और जब फौजी हमले में पिट गए तो ये अप्रत्यक्ष युद्ध शुरू किया टेररिज्म का, और मारे जाओ भारतीय, मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे कार्टून नेटवर्क भेजे जाओ, भारतीय मारे जाओ। क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई उखाड़ देगा? किसको परवाह है? भारतीय जाने जाती हैं तो वो नाली के कुत्ते हैं, गली के कीड़े हैं, मर गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मर गए नहीं, तुमको कीमत देनी पड़ेगी। और अब भारतवर्ष ने बता दिया है कि ये 26/11 जैसा तमाशा नहीं होगा कि हम डोजियर पे डोजियर भेजेंगे और तुम्हारी कोर्ट बोलेंगी ये तो कचरा है, कचरे के डब्बे में फेंकेंगी। अगर ऐसा है तो फिर ओनली आंसर इज काउंटर स्ट्राइक, जैसे कि हमने उड़ी में किया, बालाकोट में किया और पहलगाम के बाद किया। और बाय द वे, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। आप चुलबुली दिखाओगे, बेवजह उंगल करोगे, जो फिर दोबारा शुरू की है, तमाशा शुरू कर दिया है, नाटक कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेंस, इट इज इन अबेंस बिकॉज ऑफ व्हाट? योर टेरर स्ट्राइक्स। क्या आपने कोई हमको वर्बल रिटर्न अश्योरेंस दिया है कि आप टेररिज्म बंद करोगे? यू विल नॉट रिपीट मास कैजुअलिटी टेरर स्ट्राइक्स इन इंडिया? करोगे तो पड़ेगी। We will not be reactive and defensive and do firefighting on one side of the LCN border. हम बॉर्डर के पार जाके घर में घुस के मारेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया। नहीं समझ आया तो फिर अगली बार समझा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था। आप पहले ये ठीक करिए, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकते। टेररिज्म एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, ये आपको समझा दिया गया। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे तो उनको पड़ेगी। ठीक है साहब। और इंडस वाटर ट्रीटी आपको रीनेगोशिएट करनी पड़ेगी भारत के साथ। कोई मध्यस्थता अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, चैंग की नहीं अलाउड होगी। टॉक स्ट्रेट हियर, रीनेगोशिएट द ट्रीटी। इट इज आउट ऑफ डेट, इट इज अनजस्ट, इम्बैलेंस्ड। 80% बेसन का पानी तुमको, 20% भारत को। क्यों? तेरे बाप का राज है। तुम क्या हो? हेरन फॉक, सुपीरियर रेस कि 80% हमको आएगा, 20% भारत के लोगों को। कश्मीर के लोगों को भी, जिसकी तुम इतनी वकालत करने की कोशिश करते हो, और क्या कर रहे हो असली में? पीओके में जान माल खत्म कर रहे हो, कुत्तों की तरह मार रहे हो कश्मीरी, और नाटक कर रहे हो। अधिकारों को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पाकिस्तान पर कितना रणनीतिक दबाव पड़ेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान भारत पर वाटर वॉर छेड़ने का आरोप लगातार लगा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान युद्ध तक की धमकी दे रहा है। क्या ये आरोप तथ्यों पर आधारित है या अपनी घरेलू नाकामियों को पर ध्यान भटकाने की कोशिश की? पाकिस्तान टूटने की कगार पे है। सुन लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान मुल्ला डीजल ने क्या कहा था। अबे आसिम मुनीर, वर्दी उतार, राज करना है पाकिस्तान पे तो इलेक्शन लड़, नंबर 1। तू हमें सिविलियंस को कह रहा है कि लश्कर खड़े करो, भारत से लड़ो, इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, कश्मीर के लिए, फलाना ढमकाना। तेरे को वर्दी तूने पहनी, तनख्वाह तुझे मिलती है भारत पाकिस्तान को बचाने के लिए, और तू हमारे ऊपर डाल रहा है। वो कह रहा है अभी तक तो भैया चल रहा था काम, अब बलूचिस्तान तो आजाद हो गया, उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कर दी। खून की नदियां बह रही हैं पश्तूनख्वा में, और गदर मच गया है पीओके के अंदर। तो ये तेरे को टाइम मिला है भारत को उंगली देने का? वो बोलते हैं जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की गीदड़
कि जब मौत आती है ना तो उस शहर की तरफ भागता है पिट के मरने के लिए। अगर आपको मरना का डेथ विश है तो भारत को छेड़ो, भारत को उंगली दो, उंगली तोड़ देंगे, एक नहीं सारी। सर, क्या भारत का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से मजबूत स्थिति में है या कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की इस तर्क को समझ रहा है कि आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते? देखिए साहब, जो ट्रीटी का प्रीएम्बल था वो कहता था फॉर फ्रेंडशिप, पीस एंड गुडविल। पहली चीज जो पाकिस्तान ने खत्म करी ट्रीटी का पानी हजम करने के बाद 80% वॉज फ्रेंडशिप, पीस एंड गुडविल। मिलिया मेट का सवा सत्यानाश कर दिया जो शांति थी। 65 में हमला किया, 71 में हमला किया, कारगिल में हमला किया, ठीक है। उसके बाद 40 साल से अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ा हुआ है भारत के बरखिलाफ, एसिमेट्रिक वॉर, टेररिज्म। फिर बोले कि टॉक करो, बात करो। यहाँ पे अब्दुल्ला जी हैं, शेख अब्दुल्ला साहब के बेटे, वो कह रहे हैं बातचीत करो। फारूक अब्दुल्ला, मोहतरमा वो मुफ्ती, वो कह रही है बातचीत करो। व्हाट ब्लडी लोकस स्टैंडी है पाकिस्तान गॉट ऑन कश्मीर। महाराजा हरि सिंह ने सब कुछ बाई ट्रीटी, जो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, सब भारत को दे दिया था लीगली। सारा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके हमारा है। पीरियड, खत्म बात। और हमने 370 एब्रोगेट करके बता दिया है कि खबरदार बकवास भी मत करो। कश्मीर हमारा था, हमारा है, 10,000 साल बाद भी भारत का परचम शान से वहां लहरा रहा होगा। एप्रोपोस ये जो सिंधु वाटर ट्रीटी, ये ट्रीटी अनइक्वल ट्रीटी थी। 6 नदियों में से 3 आप पाकिस्तान को दे दो, जहां से 80% वाटर जाता है। 3 सदर्न नदियां भारत को जो, जहां से 20% वाटर जाता है। फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम, इट वॉज इलीगल। नेहरू जी ने साइन करके बात पे भारी भूल की, लेकिन उसने साइन किया था इस उम्मीद में कि शांति हो जाएगी, लड़ाई नहीं होगी, सुलह हो जाएगी, ये लोग समझ जाएंगे हम कितने उदार हृदय है। हाउ नाइस, हाउ वी विश देम वेल। लो 80% पानी पी लो, हम भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आबादी हो गई है 1.5 अरब। What about the water rights of India? India is the most water stressed region in the world. Per capita availability of water साउथ एशिया में लोएस्ट है। ऊपर से बोलो 80% पानी पाकिस्तान को जाने दे। On what basis? What rule of law is that? What equality in terms of law is that? बकवास है। It is out of date. It is out. Absolutely, it should not have been signed in the first place. India will have to renegotiate. Pakistan will have to renegotiate this treaty with India. इसी से रिलेटेड भविष्य में आतंकवाद पर विश्वसनीय कार्रवाई करने का आश्वासन करता है, तो क्या सिंधु जल संधि को फिर से सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है या फिर पाकिस्तान पर भरोसा करना नहीं किया जा सकता? पाकिस्तान ने कोई रिटर्न एश्योरेंस दिया आपको कि वो नहीं करेगा? मौखिक एश्योरेंस दिया है कि वो नहीं करेगा टेरर स्ट्राइक, मास कैजुअलिटी टेरर स्ट्राइक? कहां है? शो मी। तो क्या किया है पाकिस्तान? वो डिनाई कर रहा, हमने तो किया ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे वाह, वो लोग मर गए 26, वो झूठ बोल रहे हैं। उनके माँ बाप वगैरह जो भी जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तुम सच्चे हो। बकवास, एब्सोल्युटली। वी विल, ये देखिए, अगर मामला हमारे बीच में सामान्य हो जाए, वो भी बड़ी अल्लाह ताला की मेहर होगी कि अगर हो जाए, ठीक है, तब भी ये ट्रीटी नेगोशिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज एन अनइक्वल ट्रीटी। दिस ट्रीटी हैड टू बी, मैंने बोला ना भैया, 6 नदियां हैं, 3 आपको दे दी, आप छोटे हो। 3 का 80% बेसन का पानी आपको दे दिया, 20% भारत को। ये जायज है क्या? किस कोने से जायज? आप बताइए। 80-20 रूल, ये कहां का रूल है भाई? बराबर 50-50 हमने सुना था, अपर रिपेरियन, लोअर रिपेरियन। ये तो उल्टी गंगा है। 80% पाकिस्तान को जाएगा, 20%
भारत को जाएगा। नॉनसेंस, सेज हु? स्थिति सामान्य भी होगी तो यू विल ब्लडी वेल हैव टू सिट डाउन ऑन द टेबल एंड रीनेगोशिएट विद इंडिया, एंड नो ब्लडी वर्ल्ड बैंक, नो अमेरिका कि मैं बंदर बांट करूंगा। नहीं करोगे तुम, दफा हो, अलग रहो। सर, कुलगांव में आतंकी हमला हुआ, आतंकवादियों ने टारगेट किया गया, पहले वर्करों को तो टारगेट किया, फिर उनका धर्म की घटना पहले भी सामने आई थी पहलगांव से। क्या मैसेज देने की आतंकवादियों के द्वारा कोशिश की जा रही है? देखिए, वही मैसेज जो उन्होंने पहलगाम में देने की कोशिश की थी। आईएसआई का प्लान है, था और है, और आसिम मुनीर की ब्लेसिंग है इस प्लान को कि भैया भारत में सांप्रदायिक दंगे करो, ऐसे चुन के धर्म पूछ के मारो हिंदुओं को कि आक्रोश फैले, और जहां जो कश्मीरी भारत में घूम रहे हैं उनके ऊपर हमले हो और हिंदू मुस्लिम रॉयट शुरू हो। वेरी क्लेवर प्लान। लेकिन भारत के लोगों ने, हमारे कश्मीर के भाइयों ने बिल्कुल इनका ये प्लान समझ लिया, और कश्मीर के लोगों ने सबसे पहले कंडेम किया था इस स्टूपिड अटैक को, कम्युनल अटैक को, कि इससे हमारी रोजी रोटी, हमारे पेट पे लात लगती। टूरिस्ट जो आ रहे हैं, हमारी भलाई हो रही है, हम पैसे कमाई कर रहे हैं, शुभ लाभ हो रहा है, वो सब जाएगा। ये पाकिस्तान की नीयत है कि कश्मीरियों को चोट लगे, कश्मीरियों को भारत में चुन चुन के मारा जाए। ये है डिजाइन पाकिस्तान की आईएसआई का। हमने ये देखा, चुन चुन के मजहब पूछ के मारा पहलगाम में 26 लोगों को, और अब वही ड्रामा शुरू कर दिया है कश्मीर में। फिर से 2 अभी मारे हैं हिंदू धर्म पूछ के, वर्कर थे बेचारे झारखंड के, वहां तुम्हारे लिए सड़कें बना रहे थे, और आप उनको मार डालो, आप उनको मार डालो। ये कहां तक चलेगा? इसका तो फिर जवाब आपको सिंदूर जैसे सिंदूर 2 से मिलेगा। और वो ट्रेलर था, इस बार ज्यादा भीषण होगा। ये भी समझ के पाकिस्तान फूंक फूंक के कदम चले, नहीं तो कयामत आने वाली। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ट्रंप ने दावा किया हार्मूज के साथ न्यूक्लियर डील के भी संकेत दिए हैं। किस तरीके का संदेश इसे माना जा सकता है कि नाकि ट्रंप लगातार बयान भी बदल रहे हैं, कभी समझौते की बात होती है, कभी वो चेतावनी देते हैं। क्या अमेरिका वास्तव में बड़े सैन्य अभियान की तैयारी में है, एज पर युद्ध की नजर से? देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, ना थूक सकते हैं ना निकल सकते हैं। बेफालतू पंगा लिया ईरान पे हमला करने का, ये सोच के कि 48 घंटे में सब सपाट खत्म हो जाएगा, वेनेजुला जैसे मैं जीत का जश्न मनाऊंगा, सारा तेल खा जाऊंगा। ईरान का बत्ती बंद कर दी, 6 महीने हो गए साहब लड़ाई शुरू, 6 महीने हो गए, पिट गए हो तुम। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खोल सकते, क्यों? ज्योग्राफी फेवर्स ईरान, और आप ज्योग्राफी नहीं बदल सकते। पूरा उत्तरी तट गल्फ ऑफ हॉर्मोज का ईरान का कोस्ट है, पहाड़ पहाड़ है, वहां से मिसाइल, वहां से ड्रोन, सब कुछ फायर करके वो एक जहाज नहीं निकलने देगा। आप ज्योग्राफी बदल सकते हो क्या? आप कोई अर्थक्वेक करके पूरा ईरान का उत्तरी तट समुद्र में डुबो दोगे? क्या बकवास कर रहे हो? देयर इज नो वे दैट यू कैन ओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगर चाहिए तो आपको 1 करोड़ ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड लगाने पड़ेंगे ईरान को हराने के लिए। आप सिर्फ एयर वॉर से करोगे, दूर से हाथ लगाओगे, पास नहीं जाओगे, डरते हो, बच जाएगी। वहां पे हजारों की तादाद में आपकी कैजुअलिटी हो जाएंगी, आपकी लुटिया डूब जाएगी पॉलिटिकली। बकवास कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, धमकियां दे रहे हैं, गीदड़ बकरियां दे रहे हैं। 40 दिन बॉम्ब किया, क्या कर लिया ईरान का? क्या किया? फिर 13 दिन बॉम्ब किया, क्या उखाड़ दिया? 20 दिन और 30 दिन और बॉम्ब कर लो, क्या हासिल करो? क्योंकि वो भी पलटवार कर रहा है। तुम्हारे सारे बेसिस जॉर्डन, कुवैत, इराक में तो पर खच्चे उड़ा दिए, बंटा धार कर दिया, उठा के लेके भाग रहे हैं वापस इजराइल में, खाली करके भाग रहे हैं। तो क्या बकवास कर रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? ये वो कर रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने में, उसमें वो पैसे कमाते हैं, और जो ऑयल मार्केट को मैनिपुलेट करके वो तेल की कीमत ड्रामा झूठ बकवास करके डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने बोल दिया भैया हम कोई टॉक्स नहीं कर रहे, मैंने टॉक्स अनाउंस कर दी। किसके साथ? ईरान कह रहा है हम नहीं कर रहे। ये झूठ बोलता है ये बंदा।
तबाही मचा दी है दुनिया में, दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है। कह रहा था आई डोंट वांट टू बी प्रेसिडेंट हूवर हु क्रिएटेड द ग्रेट डिप्रेशन। तू दुनिया को डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है, बेवकूफ पागल इंसान, दुनिया को डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है। जिम्मेवार तू है।